جی جناب، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، ابھی ہم نا اردو کے اندر بات کریں گے کیونکہ میں آپ کا بھی انٹرویو لوں گا اور ریکارڈنگ ہماری ہو رہی ہے، تو آپ اردو بولیے گا۔ اردو بھی جنی کی بولی جا کے سکی بولاں گے، پنجابی بھی جنی کی جی میں کہو گے کوشش کراں گا۔ حکم کرو۔ اچھا اچھا، آپ بتائیے گا آپ کا نام کیا ہے؟ اشفاق احمد۔ اچھا، یہ کاغذی نام ہے؟ ہاں کاغذی نام ہے آپ کا؟ یہ میرا باقاعدہ شناختی کارڈ پہ نام ہے۔ اچھا، ابو کا نام کیا ہے؟ علی گوہر۔ علی گوہر صاحب، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی فیملی جو ہے وہ کس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں؟ مطلب کون سی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں؟ ذات کی ہے؟ مثلاً جیسے مغل وغیرہ۔ ذات آپ کی کیا ہے؟ ارے کہتے مغل ہیں آپ؟ مغل مغل اچھا، مغل یعنی مرزا جس کو کہتے ہیں۔ مرزا بھی کہتے ہیں، مغل بھی کہتے ہیں، ہاں جی۔ مغل۔ اور مغلوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ وہ منگولوں کی اولاد ہیں۔ ہاں بس وہ لمبی تفصیل ہے۔ ہاں جی، آپ کو پتا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ہو گیا۔ آپ کی عمر ابھی کتنی ہے؟ 46 سال۔ 46؟ 1976 کی پیدائش ہے میری۔ 1976؟ 76 ٹھیک۔ اچھا، صحیح ہو گیا۔ آپ اپنی تعلیم کے بارے میں بتائیں، سکول کی تعلیم کتنی ہے؟ 8.5 پڑھ کے میں 9ویں چ ہویا سی تے میں پھر اتھوں تعلیم کے چھڈتی سی۔ اچھا، وہ تعلیم چھوڑنے کی کیا وجوہات تھیں؟ والدہ فوت ہو گئی تھی تو والد کام کرتے تھے، ہم سارے بہن بھائی چھوٹے چھوٹے تھے، وہ بس تو جو نہیں دی کسی نے تو دل نہیں کرتا سی چھڈ دی۔ صحیح۔ دینی تعلیم کوئی؟ دینی تعلیم ادا کہ میں شروع تو بچپن چ امی میرے نے قرآن پاک پڑھایا میں، کچھ میں مدرسے روانہ ہون لگ پہ نے۔ اچھا چلیں، ہم کال کاٹ کے دوبارہ کال کر لیں گے، بلکہ آپ ہی کر لیجئے گا جب یہ اذان ختم ہو جائے، ٹھیک ہے؟ میں کرتا ہوں دوبارہ اذان ہو جائے۔ جی السلام علیکم السلام جی۔ علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا روزانہ ہو رہی ہیں سن تو ٹھیک، مسجد ہے بہت آواز زیادہ آ رہی سی۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ نے نا تھوڑا سا اونچا بولنا ہے تاکہ، اچھا اور تھوڑا سا اگر کیمرہ سامنے ہو جائے نا تو تصویر آپ کی صحیح نظر آ جائے گی۔ یہ ٹھیک ہے جی، تو چشمہ اگر اتار لیں تو زیادہ مناسب نہیں ہے، ہاں تصویر واضح ہو ہاں جاتی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ 9ویں آپ نے چھوڑ دی، پھر دینی تعلیم کا میں پوچھ رہا تھا کہ دینی تعلیم کتنی ہاں ہے؟ دینی تعلیم میں نے چھوٹا بچپن میں امی سے تھوڑا سا قرآن پڑھا، کچھ ہمارے ساتھ مسجد تھی، مسجد میں تھوڑا سا پڑھا، اس کے بعد جیسے کسی نے توجہ نہیں دی اور اسی طرح پھر زندگی گزرتی رہی۔ چند تقریباً 5 سال پہلے میں نے ترجمے پڑھے تھے قرآن پاک کے، اور جب ترجمے پڑھے تو مجھے صاف سمجھ آنا شروع ہو گیا، اور میں نے جب دیکھا کہ پوری ان لوگوں نے پورے کا پورا دین بدل دیا ہے، یعنی کہ ان سے مجھے بہت کچھ نہیں، سیکھنے کو سوال ملا۔ جو آپ سے پوچھا جائے صرف اتنا ہی مختصر، ابھی یہ ڈیبیٹ نہیں ہم کر رہے، ہاں مختصر اچھا اچھا اچھا۔ جو سوال پوچھا جائے بس۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں ساتھ ایک مسجد ہوتی تھی، وہ کون سے فرقے والوں کی مسجد تھی؟ وہ بچپن جی یاد ہے، اہل حدیث دی سی میرے خیال۔ اہل حدیث۔ اچھا، آپ کہہ میرا رہے ہیں خیال کہ قرآن پاک کے آپ نے 3-4 ترجمے پڑھے ہیں، کون کون سے ترجمے کس کس مولانا کا پڑھا ہے وہ بتا دیں۔ یہی اہل حدیثوں کا پڑھا ہے، اہل اپنا
सुन्नी जमातों का पढ़ा है। अहले हदीस का कौन सा तर्जुमा पढ़ा है आपने? वो तर्जुमा जो नेट पे ना, मेरे वो नाम नहीं आते मौलवियों के बाइबल पन्नी, तो सुन्नियों का पढ़ा है। नहीं, वो नाम तो पता होना चाहिए। आपने जब तर्जुमा पढ़ लिया तो आपको पता ही नहीं है कि मैं किस मौलवी का तर्जुमा पढ़ रहा हूँ। हाँ, ये नहीं, तर्जुमे सारे मैंने काफी नेट पे अपना मोबाइल में भी डाउनलोड है ना। ओ वो तो मैंने ठीक नाम है, नहीं कोई पूछा। तर्जुमे नाम भी तो बताएंगे तो पता चलेगा ना। आप कह रहे 3-4 पढ़े हैं, अब ये हमें आपने क्या पूछा पता जो कि जो याद है। जी जी जी, आपने पूछा जो जो याद है, मैं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। मेरे नाम नहीं, मैं नाम नहीं पढ़े ना, मुझे मतलब आपने उनका पढ़े ही नाम। नहीं है, आप ये झूठ बोल रहे हैं। तर्जुमे पढ़े हैं। और जो आप जैसे कह रहे, मैंने कहा मैं तर्जुमे पढ़े, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। देवबंदियों का कौन सा तर्जुमा पढ़ा है? उन्होंने सामने ते है नहीं मेरे किताब में, मेरे मैंने मौलवियों का नाम नहीं याद। मैं तर्जुमे पढ़े, फिर मैंने लफ्जी तर्जुमे पढ़े, यानी कि बहुत, फिर वो मेरी दिन रात इसी में रिसर्च में लफ्सी गुजर गए तर्जुमा 3 कहाँ से साल। पढ़ा आपने? नेट पे मैंने डाउनलोड किया ना, नेट से, तो मेरे मोबाइल में तमाम तर्जुमे मौजूद हैं। वो कहाँ से तर्जुमे आ गए लफ्सी? आपको लफ्सी तर्जुमा कौन सा डाउनलोड किया, कोई बताएं कुछ। ये मैंने नहीं, मुझे सीधा सा सादा सा जो जो है ना, मुझे वो समझ आ रही। नहीं, यानी लफ्सी कि मैंने तर्जुमा जो आप कह रहे हैं ना, मैंने पढ़ा है, कुरान का भी तर्जुमा पढ़ा है, लफ्सी तर्जुमा मेरे पास घर पड़ा है, अहले हदीसों का तर्जुमा है, लफ्जी तर्जुमा। अहले हदीसों का वो कौन सा? उन्होंने तो किया ही कोई नहीं। नहीं, एक मेरे पास पड़ा है, भाई ने लाकर दिया कोई था, नाम मुझे कहते बताएं ये पढ़ मौलवी के का। देखो। तो मुझे जाना पड़ेगा, लबन ढूंढना पड़ेगा। आप बता दे, वैसे ही पता लग जाएगा आपको, ठीक है। बहरहाल आपकी बातों देखना से ये पड़ेगा। लग रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इधर देखें। जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा देखिए, हूँ। रुकिए एक मिनट। ये जी तर्जुमा है अहले सुन्नत का, नूरुल ईमान। ये लफ्सी तर्जुमा है, अच्छा। ये लफ्सी तर्जुमा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी कोई लफ्सी तर्जुमा करता है, तो अल्लाह फाजले बरेलवी का तर्जुमा है, उन्होंने तर्जुमे का नाम रखा है कंजुल ईमान। तो जो भी कोई अच्छा। लिखता है हाँ, तर्जुमा, उसका कंजुल नाम एक ईमान रखता है। नहीं, वो लफ्जी तर्जुमा नहीं, कंजुल ईमान जो है वो पढ़ा मैंने। वो तर्जुमा लफ्जी नहीं है, वो रूटीन का तर्जुमा है। बहरहाल आप की बातों के अंदर तजाद है, और कोई आप बहरहाल ये चूंकि इंटरव्यू है, ये कोई वो मुनाजरा नहीं है। ये बातें तो मुनाजरों के अंदर होती हैं, नहीं तो नहीं, जब आपसे कभी हम मुनाजरा करेंगे जी तो जी, फिर उस वक्त ये बातें करेंगे। अच्छा, दीनी तालीम आपकी हो गई। सही सही। अच्छा, आप बताइएगा कि आपको कोई बीमारी? नहीं, कोई बीमारी नहीं? छोटी मोटी बुखार हो गया, सिर दर्द हो गया, ये वो वगैरह, ये तो होती रहती है। कभी आप पेट हॉस्पिटल दर्द में एडमिट रहे हो? नहीं, हॉस्पिटल में पेट दर्द वास्ते गया था एक दफा, बाकी हॉस्पिटल च नहीं मैं गया आज तक। पेट दर्द होती है आपको? हाँ, 1-2 बार हुआ था पेट खाने दर्द, तो वगैरह मैं का गया कोई था। मर्ज, पेशाब का मर्ज? हाँ, पथरी का भी पिछले साल भी हुआ था पथरी का, इस साल भी। फिर मैं दवाई ली, वो आराम आ गया। सर का दौरे पड़ते हो? नहीं सर घूमता हो, चक्कर आते हो? नहीं। रोटी से ही हजम होती है? हाँ, रोटी खाते से। अच्छा, कभी पेचस लगे हो? कभी हाँ, कभी कभी। लग जाते हैं। ज्यादा नहीं, पेशाब कभी लग जाता। ज्यादा आता हो रूटीन से? रूटीन है, कभी जब वो पथरी थी ना, वो उस वक्त मुझे बड़े परेशानी थी। अच्छा, वैसे एक मुझे लतीफा याद आ गया है, तो जी जी। क्योंकि वो मिर्जा गुलाम कादियानी ने इमाम मेहदी बनने का तरीका ये बताया है कि दिन और रात में 100 दफा टट्टी मूतर आए तो फिर इमाम मेहदी तैयार होता है। उसको वो भी कहता है ना, मुझे भी। ਉਹ ਕਾਫਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਫਰ ਲੋਕ अच्छा, ਨੇ, ਫਿਰ ठीक हो गया। ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਾਫਰ ਕਹਿਤਾ ਹੁਣ। अच्छा, आगे एक मेरा सवाल है कि कोई अभी दवाई जारी है आपकी? ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈ ਉਹ ਏਦਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਲਾਲ ਆਪਣਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ, ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ,
चलो नींद और एक तो आप ना तेज बोलते हैं, दूसरा पंजाबी बोल रहे हैं, सुनने वालों को कुछ समझ नहीं आनी। अच्छा अच्छा आहिस्ता बोलें, जरा लफ्जों को सही नखेड़ के बोलें, तसल्ली से बोलें, ताकि सुनने वालों को आपकी बात समझ आए। अभी आपने क्या तो कहा कि मैं मैंने जब दावा किया, कौन सा दावा किया, तो क्या हुआ? इमाम मेहंदी होने का दावा किया ना जब मैंने, तो सारे भाई मेरे परेशान हो गए, सब वो मेरे खिलाफ हो गए, सब ये वो बहुत लंबी बात है वो रोज नहीं तुम पागल हो गए हो, दवाई लेकर हमारे साथ चलो हमारे साथ चलो। वो एक बार ना मैंने उनका खुश करने के लिए इतना कहते हैं, लंबी बात है, अच्छा चले, बहरहाल ठीक हो गया जी। मैंने ये ना इंटरव्यू मुख्तसर करना है, ये अभी डिबेट नहीं मैं कर। ठीक 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 ठीक, सॉरी सॉरी सॉरी। आपने कभी उलमाए कराम की कोई सोहबत इख्तियार की हो? बहस करने की कोशिश की है, यानी कि समझने की सोहबत कोशिश नहीं, की है कभी जाके। किसी से तालीम हासिल करने के लिए नहीं, किसी मदरसे में गए या कहा था कुछ? मैंने मैंने कहा था एक दो को, और वो कहते हैं तुम तो बड़े दावेदार हो, तुम खुद ही सीखे सिखाए। आप डिबेट करनी शुरू कर देते हैं, मैं जो पूछता हूँ हाँ या ना में जवाब दे दे, बस बात खत्म हो जाती है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, नहीं नहीं, किसी आलम के पास मैंने नहीं गए? बचपन में गया था, वो उसके बाद नहीं गया। जी जी, कभी नहीं गए आप। सॉरी। आपका फिरका कौन सा है? मैं तो मुसलमान कहता हूँ अपने आप को, नहीं, लेकिन हमारे अभी तो आपने दावा किया ना, दावे से पहले पहले आप क्या थे, आपके घराने वाले, आपके अम्मी अबू, आप? अहले सुन्नत जमात, हमारे सारे खानदान वाले अहले सुन्नत। अहले सुन्नत तो सारे ही अपने आप को अहले सुन्नत ही कहते हैं, भाभी भी, देवबंदी भी, बरेलवी भी, शिया भी, सब अहले सुन्नत ही हैं। अहले हदीस हुंदे आ, एक देवबंद हुंदे, एक अहले सुन्नत हुंदे, तीन चार मतलब ये कि अहले सुन्नत कौन से वाले अहले सुन्नत, ये भी एक बड़ा मसला है ना। आप बरेलवी थे मेरा ख्याल है बरेलवी, मेरा कि देवबंदी? क्योंकि देवबंदी भी अहले सुन्नत कहते हैं। बरेलवी मेरा ख्याल है। अच्छा, मतलब ये कि मौलाना अशरफ अली थानवी साहब वाला? पता नहीं, मैं पहले बार नहीं मालूमात। जी अब पता ही नहीं है आपको, तो अब मतलब ये कि आपको पता ही कुछ नहीं, इतनी जिंदगी आपने गुजार ली, आपको पता ही कुछ नहीं कि मेरे वालिदैन कौन है, क्या है, मैं क्या हूँ। वो बस जो कुछ है याद है वो तो मुझसे जा रहे हैं। अच्छा जी, यानी फिरका नामालूम, यहाँ मैंने लिख दिया फिरका नामालूम, पता ही कौन नहीं। अच्छा, कभी आपने कोई चिल्ला चिल्ला काटा हो? नहीं, चिल्ला कोई नहीं काटा। कोई वजीफे वजूफे किए हो कोई? नहीं नहीं, जंगलों में कोई निकल गए हो या इधर उधर? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, एक मेरा सवाल है कि इमाम मेहदी के बारे में आपको कहां से पता चला कि इमाम मेहदी भी कोई शख्सियत है? वो मैंने जब ये सुना था, बचपन में से सुनते आ रहे थे कि इमाम मेहदी ने आना है, तो मैंने एक नेट पे जब देखा तो बड़ी लंबी बात है वो, वहां से वो इधर सिलसिला नहीं, मुख्तसर ये हुआ कि बचपन से आप जो सुनते आ रहे थे कि इमाम मेहदी ने आना है। सुना था कि इमाम मेहदी ने आना है, सुना था, फिर वो। अच्छा जी, ठीक है, बस ये सुना था। अगला मेरा सवाल है कि इमाम मेहदी के बारे में आप क्या जानते हैं? वो कौन होंगे, कैसे होंगे, क्या हालातों वाकयात होंगे, इसके बारे में बताइए। ये मैंने जो मेरी रिसर्च है मुख्तसर ये है कि वो जब आएंगे तो दीन को असल हालत में ओपन करेंगे कुरान पाक के मुताबिक, ये असल उनका मकसद है। अच्छा, ये आप की रिसर्च आपने कहां से किया? आप कह रहे मैंने रिसर्च की। मैंने नेट पर भी लिखा और मैंने हदीसें भी मेरे को किताबें मेरे पर पढ़ी हैं, सही बुखारी उस पे भी है, वो ये कि नेट पे मैंने सही बुखारी के अंदर आपने पढ़ा है? बुखारी में हाँ, नेट पे ना, ये नेट पे मैंने डाउनलोड की हुई है। और नेट के अंदर भी तो कोई किताबें ही होंगी ना। नेट तो आपको चलाना ही नहीं आता। आप तो कहते हैं मुझे नेट चलाना ही नहीं आता, तो आपने कैसे नेट पे रिसर्च कर ली? डाउनलोड की हुई है, डाउनलोड की हुई है। भाई डाउनलोड आपको तो चलाना ही नहीं आता नेट। आपकी पहली सारी हमारे पास वो रिकॉर्डिंग मौजूद है। आपकी बातों के अंदर तजाद है, झूठ है। एक तरफ आप कह रहे हैं नेट से मैंने सब कुछ हासिल किया, दूसरी तरफ आपको नेट चलाना ही नहीं आता।
तरीके मैं आपको बता रहा हूँ नेट चलाने के। जैसे नेट बच्चे चला लेते हैं ना, हर छोटे छोटे बच्चे चला रहे हैं आजकल, तो वो बच्चे सीधा कल की बात है जब मैं आपको लाइव आने का कह रहा था, यही बात मैं आपको बता रहा था, ये बच्चों को भी काम आता है। जो आप मुझे ले गए थे एक बंदे के पास के मैं बात करवाता हूँ। दुकान पे भी गया, देखो मैं दुकान पे भी गया, उसने भी ओ जी आप देखिए ये झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप, टोटली झूठ है, फ्रॉड है ये। अच्छा बहरहाल मैं डिबेट नहीं अभी कर रहा, जब डिबेट करूंगा तो लग पता जाएगा आपको। अच्छा जी ठीक ठीक। अच्छा इमाम मेहदी के बारे में आप यानी कुछ नहीं जानते, सुनी हुई बात है जी, बचपन से सुनते आ रहे थे। यहाँ पर मैं जब आप लाइव आएंगे ना तो किताबें खोल खोल के मैं दिखाऊंगा। लाइव मंगवाने का एक सबसे जो समझ ले के बेहतरीन तरीका यही है, और जरूरत ये है कि भाई बंदे को लाइव बंदा खोल के किताब दिखाता है कि ये देखो। उधर लाइव आने में ये होता है भागने के चांस, लाइव आने में भागने के चांसेस नहीं होते, भाग नहीं सकते। नहीं, अगर आप दूर बहुत है, मैं आप बुखारी शरीफ की बात कर रहे हैं मोहतरम, बुखारी शरीफ के अंदर इमाम मेहदी का कहाँ पे तज़किरा है? नहीं, मैंने इधर नेट पे जो मैंने बुखारी है ना, कोई नेट नुट को नहीं, क्या करते हैं आप, ये मैं कह रहा हूँ कि हमारा यही काम है, ये झूठे इमाम मेहदियों को बेनकाब करना, झूठे मसीहियत के दावेदारान को बेनकाब करना, झूठे मुजद्दिदीन को बेनकाब करना, हमारा काम ही ये है। अबू दाऊद में होगा और नहीं है कहीं, आपको नहीं, कुछ भी नहीं पता आपको, आप फारग हैं बिल्कुल। अच्छा जी आगे जी। कुरान और हदीस, मेरा अगला ये सवाल भी यही लिखा हुआ है, कुरान और हदीस में कहाँ कहाँ इमाम मेहदी का तज़किरा है? कुरान पाक में तो मैंने नहीं, मुझे नहीं पता कहाँ, मुझे नहीं नजर आया, या मेरी सोच इतनी ज्यादा वसी नहीं है। अच्छा हदीसों में मैंने पढ़ा तो मुख्तसर, वो भी यानी कि मेरे हदीसों में कोई एक हदीस बता दें, अगर किताब है यहीं पे, आप कह रहे मेरे घर में पड़ी है किताब, मेरे पास नहीं किताब, नेट जो मैं मोबाइल पे हूँ, नेट के हूँ, आप कह रहे थे मेरे घर में ही किताब पड़ी है हदीस की, बुखारी की, अभी आपने कहा है। हाँ पढ़ी है, लेकिन मैंने नेट पे देखा है ना, नेट पे, यानी किताब पे नहीं, किताब में नहीं देखा आपने? किताब में नहीं देखा जी जी, किताब में नहीं देखा, सही हो गया। क्या ये मेरा अगला सवाल है, क्या आपने कभी कोई किताब लिखी या कोई इश्तिहारात जारी किए कोई, जैसे मिर्जा कादियानी करता था? नहीं, किताब नहीं लिखी, इश्तिहार मैंने छपाए थे, ये कुरान पाक के मतलब सवाल पूछे, बारे में बताया, पूछा। वो जो इश्तिहारात आपने मुझे भेजे थे वो वाले हैं? हाँ वो तीन चार पाँच। हाँ ठीक है, वो मैं इश्तिहार भी वीडियो के अंदर लगा दूंगा, ताकि आपका वो कारनामा जो है ना वो भी कौम को पता चल जाए कि इमाम मेहदी साहब का क्या कारनामा है। अच्छा जी, झूठे इमाम मेहदियों के बारे में आप क्या कहते हैं? उन पर लानत। लानत? कोई दो चार झूठे इमाम मेहदियों के नाम बताएं। नाम मैंने नहीं याद है, मैं तो झूठ मारा है जी में, ओ मां मेहंदी जी, ओ मां मेहंदी ये जो थे पढ़िया गया जी, कोई नाम तो बताएं दो चार के कुछ, जैसे कादियानी हो गया, और एक दो और सब ना नहीं होंगे, और ना नहीं मैं बहुत याद होते जो तुम ना ले ले होते, फिर मैं। अच्छा अब आ जाते हैं इंटरव्यू के असल पॉइंट की तरफ, कि आपका दावा क्या है, आपका दावा क्या है? असल कुरान पाक के मुताबिक दीन पे आ जाएं। दावा क्या है आपका, दावा क्या है? वो तो लोगों ने आपसे पूछ के थोड़ी कुरान हदीस पर आना है, दीन पर आना है। ठीक। आपका दावा क्या है? दावे से मेहरबानी। आप ऐसे मुझसे पूछ रहे हैं जैसे आपने मुझे पूछ के चलना है जी, मुझसे पूछ के आपने दावे करने हैं। दावा तो आज जो मैंने इमाम मेहदी का होने का दावा किया हुआ है, उसके बाद पूछ रहे हैं। तो वही तो पूछ रहा हूँ कि दावा क्या है आपका? मैंने आज से 4 साल पहले से इमाम मेहदी होने का दावा किया हुआ। अभी 2022 है, तो आपने यानी 2018 में इमाम मेहदी होने का दावा किया? 20 को
यानी कि तो आप 19 4 के साल कह एंड रही में, है, यानी 20 को 4 साल बन जाते हैं। 20 के शुरू यानी कि 19 के एंड पर या 20 के शुरू में? आपको पता ही कख नहीं है, आप हर चीज को 20 आप के ये कहते शुरू हैं पता में ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। मैं 20 के शुरू, वो पहले डिलीट हो गई थी ना मेरी, वो जो थी वो मोबाइल गुम हो गया था, तो वो सब खराब हो गया था, वो सब डिलीट हो गए। तो वो जो मेरे पहले फेसबुक है ना, वो गुम हो गए थे, तो ऐसा मेरा प्रॉब्लम बनी है। चलो, ये देखिए जिन्होंने कहा था फेसबुक का 19 आपके दावे के 19 साथ क्या ताल्लुक है जी? इमाम मेहदी फेसबुक चलाएगा? हैं? आप ना यहाँ पे इंटरव्यू अब खत्म करते हैं, बस इतनी जो गुफ्तगू करनी थी हमने कर ली। जी 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 मुनाजरा भी आपसे क्या कर रहा हूं मैं, आपको तो पता ही कख नहीं, जाहिल आदमी हैं आप। मेरा आपको मशवरा है इशफाक साहब कि मेंटली तौर पे मैं जाती तौर पे डॉक्टर हूं, ठीक है, और आप जैसे पेशेंट हमारे पास बड़े आते हैं, और वैसे भी मेरा प्रोफेशन है इसी काम में कि मैं झूठे लोगों को बेनकाब करता हूं। मेरा आपको मशवरा है, सही आपके अच्छी भाई अच्छी बात। आपके भाइयों ने आपको सही मशवरा दिया कि आप इलाज करवाएं, आपको इलाज की जरूरत है, ठीक है। मेरी बात तसल्ली से सुनिएगा, गुस्सा आपको बड़ा आना है मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूं कि नहीं, मैं गुस्सा नहीं करूंगा आपका, आप जो भी कहेंगे मैं गुस्सा नहीं करूंगा, जी, मैं जो भी दिल में है कह दें। तवज्जो से सुने, आप इलाज करवाइए, आपको इलाज की जरूरत है। पता है क्या, आप जो कहते हैं मुझे ख्वाब आया, ये दीन हमारा ख्वाबों के ऊपर नहीं खड़ा, ख्वाबों के ऊपर नहीं खड़ा कि ख्वाब आया जी। सही ओ भाई, हमें बड़े बड़े ख्वाब आते हैं, तो अब ख्वाबों के ऊपर हम अपने दीन को चलाना शुरू कर दें? ख्वाबों के ऊपर सही ये सही दीन नहीं मारा खड़ा। दूसरी बात, हजरत इमाम मेहदी की बकायदा तौर पे निशानियां मौजूद हैं अहादीस के अंदर, और सही उनमें से एक निशानी भी अभी तक नहीं पूरी हुई। सही समझ आई कि नहीं? जो इमाम मेहदी की सही निशानियां अहादीस में मजकूर है, तो वो तो निशानियां पूरी नहीं हुई। रही बात तवील करनी कि देखो जी फलां हदीस में वो है कि जनाब वो 2 जर्द चादरें पहन के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे, तो 2 जर्द चादरों से मुराद मेरी 2 बीमारियां हैं। ऊपर वाले हिस्से की बीमारी है कि मुझे सिर के चक्कर आते हैं, मैं मराकी हूं, दुराने सर मेरा रहता है, और नीचे वाली मेरी जर्द चादर है कि नीचे वाली बीमारी के दिन और रात में 100 दफा टट्टी टट्टी मूत्र आता है। ये मिर्जा कादियानी। अच्छा तो अगर तो करनी है तवीलें। हाँ, अच्छा जी, आप पूछ रहे थे कोई चीज, एक बात। हाँ, मैं देखिए मैंने ना जो जो भी इन आलमों के आगे रखा है ना, वो मुझे मेरी बात को झूठ नहीं कहते, ना सच बताते हैं और ना नहीं, झूठ मैं कहते मैं हैं। भी आलिम हूँ, आप मुझे इस आलिम बात का समझते हैं कि नहीं, बताए? मैं नजर से आ रहा है माशाल्लाह। मैंने एक बात बताई है कुरान पाक की, एक लेते हैं एक बाकी बात वो करें दूसरा आप, एक। मैंने इन लोगों को बताया है कुरान पाक की। मुझे बताएं, आप इन लोगों को छोड़े, मुझे हाँ, बताएं। आपको मैंने बता रहा हूँ कि कुरान पाक में अल्लाह ने एक तरतीब रखी हुई है। क्या अल्लाह तरतीब ने रखी? जो भी कहा है पहले काम कहा है, फिर नाम लिया है। ये कहाँ पे इसने आपने पढ़ बहुत से लिया है? राज ये आपका मैंने पंफलेट पढ़ा है, वो आपने गप मारी है, ऐसे ही गप नहीं मारी है नहीं, आपने। अगर अगर आप कहते हैं कि ये ऐसे गप है या मैं गलत हूं, तो आप एक आयत काम मुझे काम पेश तो कर पहले दें। है ही नहीं कुरान के अंदर। आप देखिए, आप पता नहीं कौन सी हवाइयां छोड़ते हैं मेरे भाई। अच्छा कुरान के अंदर, कुरान अभी हमने नमाज कोई पढ़ी को नहीं, हज ज़कात कोई किया कोई नहीं, अमल कोई भी नहीं किया। वो तो कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदन लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। जो लोग गैब के ऊपर ईमान लाते हैं उनके लिए ये किताब हिदायत है। वायुकीमून सलात बाद में है, ज़कात की अदायगी बाद में, हज रोजा ज़काते बाद में है, पहले गैब के ऊपर। आप कह रहे काम पहले है नाम बाद में है, ऐसे नहीं नहीं है। फिर दूसरी बात, एक सुने, अगली बात, आप अगली बात तरतीब। मैं आपके सवालों के जवाब तो दे दूं, रुके तो। तरतीब कौन सी तरतीब जी? क्या जिस तरतीब के साथ कुरान पाक उतरा था ये तरतीब नजूली है? मौजूदा कुरान वो तो नहीं है। आप कह रहे तरतीब, आपको पता ही कुछ नहीं। आप देखें, अभी इंटरव्यू के अंदर आपने बताया मैं अनपढ़ हूं, चिट्टा कोरा, कुछ
कुछ भी नहीं आपको पता। तो ये जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है ना, आप इलाज करवाइए। आपके ज़हनी असरात है, ठीक है, कोई शैतान आपके ऊपर हमलावर हो रहा है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ये शैतान और जन्नात और इंसान कुछ है कि जो वसवसे डालते हैं, तो इनसे बचें आप। तो अभी इंटरव्यू हमारा काफी तवील हो गया है, आज के लिए इतने काफी, फिर गुफ्तगू करेंगे, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया जी इशफाक साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी इशफाक अहमद साहब, क्या हाल है? जी सर, क्या बोल रहे हैं? जी जी, खैरियत है? अल्लाह खैर, दुआ। अच्छा, गुजारा ये है कि वो इंटरव्यू लिया था मैंने आपका, वो अभी अपलोड करना है, तो उसके साथ 2 सवाल थे, वो मैंने आपसे पूछने हैं, तो वो भी साथ में शामिल करना चाहता हूँ। कम करें सर। अच्छा, आपने इंटरव्यू के अंदर बताया था, पहला सवाल ये है कि इंटरव्यू में बताया था कि आपकी जात, क्या जात बताई थी आपने? अपने मुंह से दोबारा बता दें। तो मेरा मुगल यही पूछ रहे हैं, जाट मुगल मिर्जा, वगैरह। मिर्जा मुगल। मुगल, हाँ जी, यानी हाँ मिर्जा जी। मुगल एक ही होता है? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਗਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਚਪਨ ਚੋਂ, ਜੋ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦੱਸਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਵੱਡੇ ਦੇ ਤੁੰਦੇ ਮੁਗਲਾਂ ਜੀ मुगल। नहीं, आपको तो नहीं पता, लेकिन दुनिया को तो पता है ना, मिर्जा मुगल एक ही ਅਸੀਂ चीज होती है। मुगल जो मुगल मिर्जे नहीं, मिर्जाई 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 मिर्जे मिर्जा ये अलग नहीं है। चीज है, मिर्जा अलग चीज है। मिर्जा एक कास्ट है, एक जात नहीं है। नहीं, मिर्जा नहीं, मुगलों का मुगल दूसरा नाम मुगल मिर्जा है। मुगल मुगल मिर्जा मिर्जे की गल नहीं। ਉਹ ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਹਿ ਕੋ ਆ ਲੈਂਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਜੋ ਕੋ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਹਿ ਕਰੋ। नहीं, मैं यही तो सवाल कर रहा हूँ, आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे। मैं ये आपको मर्जई नहीं कह रहा, मैं आपको कह रहा हूँ कि मिर्जा है आप, आपकी जात, नहीं नहीं, आपकी मुगल मुगल ਅਸੀਂ जो लिखाई थी ना जात मुगल लिखाई थी है। तो शनाख्ती मुगल कार्ड दी पहले खास मुगल जात दी कहते थे, मुगल मुगल लिखी आजकल अपने आप को मिर्जा कह रहे हैं है। जी। हैं क्या मिर्जा कौन? जनाब, आप बात समझ ही नहीं रहे, या सुन नहीं रहे, या मतलब आपको समझ नहीं आ रही। मैं भाई को बता रहा हूँ कि हम अगर कोई पूछता है या कागजों पे लिखना होता है, कोई भी जहाँ लिखना होता है जात पूछते हैं लिखाते हैं, वो मुगल लिखाते हैं हम। मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि आप मुगल हैं, मिर्जे नहीं हैं आप। मुगल मुगल मुख्तर मुगल मुगल। आप इनकार करें ना जनाब, यहाँ तो बताइए ताकि लोगों तक पैगाम तो पहुंच पाए। आप मुगल हैं, मुगल आप मिर्जे नहीं हैं। नहीं, मुगल मुगल सुनिया ਹੁਣ ਤੱਕ मुगल सुनिया ਸੀ बचपन ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ मुगल लिखते हैं, मुगल ही करने ਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ मुगल सुनिया, मुगल ही करने, मुगल लिखਣ ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। और जिथे कितने लिखी है ना जात के लिखाओ की, तो जो मुगल लोग लिखी अपने आप को मिर्जा कहते हैं, क्या वो मुगल नहीं होते? सारा ਅਸੀਂ ਮੁਗਲ ਲਿਖਾਈ ਦਾ, ਮੁਗਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਅੱਜ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਜਿਸਨ ਕੋ ਮੁਲਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਬੇਗਲ ਖਾਣ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਬੜੇ ਤੇ ਨੀਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਬੇਗਲ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤਸਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ, ਮੈਂ ਸਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੁਗਲ ਘਰਾਏ ਆ। जो तुसी लिखना हो ਮੈਨੂੰ नहीं पता। आप यही तो कह रहा हूँ कि मैं आपको मिर्जा कह सकता हूँ कि नहीं? मिर्जा इशफाक अहमद। मैं नहीं मिर्जा नहीं, मुगल कह सकते हैं। कि देखो वो भी मैं मैनू मुगल कहने की भी जरूरत कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं मुसलमान कहना चाहते हैं। ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਤਾਂ दुनिया ਦੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। अच्छा, बहरहाल मतलब आप जाहिल हैं इस चीज से, आपको पता नहीं है कि मुगलों को मिर्जा कहा जाता है कि नहीं, यही बात है। जी कहते ने मुगलों को मिर्जा भी कहते ने, हाँ जी, लेकिन तुसी बस ये देखे, सुन, रुक जाएं। पिछले 4 मिनट से मैं जो चीज पूछ रहा था वो अब बात आई है सामने। यही तो पूछ रहा हूँ को मुगलों को मिर्जा कहते हैं कि नहीं? आप पानी के अंदर क्यों नहीं कर रहा करार के, क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि लोकी ना एक गल नू मरदई भी अपने मिर्जा कहते हैं, अक्सर मिर्जा कहते मरदई। और जनाब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप अपनी बात करें, आप मर्दइयों की बात ना करें। अच्छा ठीक ठीक ठीक।
अब दोबारा रिपीट करता हूं कि क्या मुगलों को ही मिर्जा कहते हैं कि नहीं कहते? सर मैं तर्जमा देखो वो गुस्सा करते मैं तर्जमा मोबाइल तो बाद मैं और किताब तो तर्जमा चेक कर लांगा कि मुगलों ਨੂੰ मुर्जा कहते हैं कि कहते कि मुगल का मैंने की अभी तो आप कह रहे हैं कि बाद लोग मुगलों को मिर्जा कहते हैं, फिर मुकर रहे हैं आप। सर मैं पढ़िया नहीं किताब से तर्जमा नहीं अभी पढ़िया तो आप कह रहे थे, अभी मैं 2 मिनट पहले तो आप कह रहे थे। मैं सर स्टडी नहीं मैं सुनिया मैं हूं जिवें रिश्तेदार कह दिंदे आ कि कोई मिर्जा को ਹੁੰਦਾ है जहां मेरा कजन आ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਬਚਪਨ ਤੋਂ और मिर्जा साहब की हाल है ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਗੁੱਸਾ नहीं किया ठीक है मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बस चुप हो जाए अब। मतलब ये है कि मुगलों को ही मिर्जा कहते हैं और मिर्जों को ही मुगल कहते हैं, खुलासा ये निकला है। इशू नहीं है तुहां जो पूछा मैं दसता चलो ठीक है, मतलब आपको मिर्जा कह लें या मुगल कह लें, आपको कोई टेंशन नहीं। नहीं मैनू देखो मैं तो पहले कहा मैनू बेग कह लें, बेग कह लें, मुगल कह लें, मिर्जा कह लें, ये एक ही चीज है। मिर्जा मैं नहीं को आया तक मैं मिर्जा नहीं को आया नहीं, आपने नहीं कहलवाया, जरूरी तो नहीं है। देखें जैसे सैयदजादे हैं, सैयदजादे सुने जरा, सैयदजादों को इधर पाकिस्तान के अंदर सैयद कहते हैं, शाने भी कहते हैं, ये शाने हैं, ठीक है। गुजरात की साइड पे चले जाएं तो सैयदजादों को शाने कहते हैं। आप इधर चले जाएं शेखुपुरा की साइड, इधर आगे मियाँ जी कहते हैं, मियाँ जी, ठीक है। अच्छा मुगल एक ही सुनो क्यों कहते ने आजाद मुगल क्यों बनी है जो मैं सुनिया सुन लो हुण सुन लो सुने तो सही ना जी, सुने तो सही ना जी, रिकॉर्डिंग हो रही है, आप बीच में बोले नहीं, अगले की बात पहले सुन लें। वो रिकॉर्डिंग ना सही नहीं जाती, वो ना ही आपकी बात लोगों को समझ आनी है ना ही मेरी समझ आनी है। अच्छा गुजारिश ये है कि अब अरब में चले जाएं तो सैयदजादों को आले रसूल कहते हैं, शरीफ कहते हैं, शरीफ। तो मतलब ये है कि सैयदों को मुख्तलिफ नामों से याद करते हैं लोग। तो इसलिए ये मिर्जों को जो मुगल हैं, मुगलों के मुख्तलिफ नाम है, इनको मंगोल भी कहते हैं क्योंकि ये मंगोलों की औलाद है, ठीक है। मंगोल भी कहते हैं, मिर्जा भी कहते हैं, बेग भी कहते हैं, और लुहार भी कहते हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ मतलब नाम है। अब आप मुझे बताइए कि जो बात मैंने की है आप इससे मुत्तफिक हैं कि नहीं? यही सुनिया था, जो सुनिया तो यही सुनिया ही मैं जो कह रहा हूँ मैं गलत कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ? सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, यही गल्ला करते यही गल्ला। अच्छा दूसरा मेरा सवाल था, 7-8 मिनट लगा दिया आपने एक सवाल के अंदर और इतनी उलझन डाल दिया आपने। अच्छा दूसरा सवाल ये था कि आप अपना नाम क्या है आपका, दोबारा नाम दोहराइएगा। अशफाक अहमद। अहमद। अच्छा ये जितने भी आज तक ये आए हैं ना महदियत के दावेदारान, जैसा कि आपने भी दावा किया है कि मैं इमाम मेहदी हूँ, तो वो सारे अपने नाम के साथ अहमद लिखते हैं। नहीं मैंने बचपन के देखो बचपन से मैंने अपना नाम नहीं रखा, ना मैं अपने वालिद को कहा था कि मेरा नाम ये रखो, ना माँ बाप को। मैं तो पैदा जब हुआ मुझे पता सवाल है मेरा, इधर देखिए रुकिए, मिर्जा गुलाम अहमद, ऐसे रियाज अहमद गोहर शाही, ऐसे ही अहमद सोडानी जो था जिसने वो भी कहता था मैं भी इमाम मेहदी हूँ। तो अब आप तशरीफ लाए हैं तो आप भी अपना नाम अहमद बता रहे हैं, यानी नाम मैं एक थोड़ा मजे की गल सुनो, मैं अल्लाह की कसम मैं खा के ना हकीकत तुहानू यकीन होवे ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ 2026 ਚ ਸਨਾਤਨੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਡੇਟ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਕਢਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ। ਮੈਂ ਅਹਿਮਦ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਮਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਲਿਖਾਉਣਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ तो फिर पता लगा कि तरतीब की है तो पहले काम करना उतो आ गए। मैं अपना इरादा मैं उस तो बाद इरादा मैं चेंज कर लिया, नहीं मैं मार के बाकी लगी तो अल्लाह के तो अल्लाह जो नाम बचपन जो लिखा गया मैं उन्होंने नहीं चेंज करांगा। पहले मेरा इरादा सी कि मुहम्मद सवाग लिखाउण दा।
अच्छा चलिए मैंने नहीं आप बताया गलत स्टोरियां शुरू कर देते हैं, सवाल आपसे कोई और करते हैं, आप बात ले जाते हैं बड़ी दूर, बात तब्दील हो जाती है। सॉरी, अच्छा सवाल का जवाब हो गया कि बस आपका नाम अहमद है, बस ये सवाल का जवाब ये था कि हाँ जी है या नहीं है, बस। अच्छा अच्छा आप वो कहानी शुरू कर देते, इतनी लंबी कहानी अब कौन बैठ के सुनता रहे। अच्छा ठीक है, ठीक आज ठीक। डेट है जनाब 26 अक्टूबर 2022। तो अभी तक आप अपने दावे के ऊपर कायम है कि मैं इमाम मेहदी हूँ? जो कुछ मैं देखो, जो मैं किया हूं तक मैं वही दोहरा लगा, जो मैं हूं तक किया वही मैं दोहरा लगा। जो कुछ मैं देखा, जो कुछ सुनिया, जो तक मेरे तक पहुंचिया, मैं सारे नु समझ रखदे आया। मेरे को इस औहदे चों नहीं निकलिया गया, यही मैं कह रहा हूं तक, और अपने दावे में आज तक यानी कि इनकार नहीं किया। फिर वही ना बात, पूछिए आपसे कोई और जाती है, आप जवाब कोई और देते हैं। मैंने सवाल क्या किया था बताएं? मैं गुनाहगार क्यों हो जाऊं? मैं जो देखा, जो मैंने सुना, सवाल जो क्या किया पहुंचा, आपसे? सवाल जरा मेरा रिपीट करें। हाँ वो दावे से मैंने अभी तक यानी कि उसको मैंने इनकार नहीं किया। किससे? दावे से, इमाम कौन मेहदी से के दावे दावे से से? मैंने इनकार नहीं किया। इमाम मेहदी होने के दावे से मैंने इनकार नहीं की। बस ये मेरा दावा बता उस दें भाई मैं इमाम मेहदी 4 हूँ साल कि नहीं हूँ, बस इतना जवाब था। है। देखो, हूँ कहना जाता है, गैब में चला जाता है। मैं फिर बता रहा हूँ जो आपका मैंने जो देखा, दावा जो है मैंने सुना। इमाम देखो मेहदी मैं होने जो का, आप जो उस पे अभी सत्य है तक, ना, है? आपसे आपका जो दावा है इमाम मेहदी होने का, जी मैं इमाम मेहदी यानी इशफाक अहमद इमाम मेहदी है, उस पे अभी तक आप एक कायम हैं या मुकर गए हैं? नहीं मुकरे नहीं, मैं बेकायम होते। कायम है, बस जी, बहुत शुक्रिया जी। ये हम ये आपकी रिकॉर्डिंग जो है ना अपलोड कर देते हैं। और दूसरी बात यह है कि अब आइंदा से मैं आपसे डिबेट का सिलसिला शुरू करूंगा, ठीक है? क्योंकि आप अपने दावे के ऊपर कायम है। मेरा इरादा तो ये था कि इंटरव्यू के बाद आप का दिमाग सही हो गया होगा, लेकिन आप अभी तक हिले हुए हैं। तो आपसे मैं अब इंटरव्यू मतलब डिबेट करूंगा, मुनाजरा जिसको कहते हैं, ठीक है? वो मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ठीक।